Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss second bumper MCQ related to the Central Civil Services Conduct Rules 1964. In this part, I will discuss Rule 6 to 10 with complete explanation, and also you can find 15 updated 15 multiple choice questions. So nowadays, what type of questions are coming basically in different government exams? Clear now, you know that Eklavya Model Residential School EMRS principal exam is there. So this part is very useful for them, and other LDC exam or assistant exam or any other section officer exam. It's very useful. All types of departmental exam. Conduct rule is very important one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel, and do not forget to share my channel, because your friends and relatives also they can get benefit. So my friends, now I am going to start second bumper MCQ related to the Central Civil Services Conduct Rules 1964, and in this part I will discuss Rule 6 to 10. Rule 6, you see, Rule 6 related to the joining of associations by government servants. रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल को आपको याद रखना है. Joining of associations by government servants, related to the associations, not to join any association which is prejudicial to interest of the sovereignty or integrity of India. Clear? आपको एसोसिएशन ज्वाइन करना है, आपका जो यूनियन है ज्वाइन करना है, और ऐसा आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट यू शुड नॉट ज्वाइन द एसोसिएशन, ओके, द वर्क ऑफ द एसोसिएशन विच इज अगेंस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सो आपका जो यूनियन है, सर्विस यूनियन है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके रिलेटेड हम देखेंगे. जो उसका सेक्शन 1 है, यूनियंस कैन डिस्प्ले ऑन. आपका जो यूनियन है, आपका डिपार्टमेंट का जो यूनियन है, आप एक मेंबर हो, सो उसका डेट, टाइम, प्लेस ऑफ मीटिंग आपको पता होना चाहिए. किस डेट में मीटिंग होगा आपका यूनियन का, सर्विस यूनियन का, किस टाइम में, किस प्लेस में. यू आर हैविंग राइट टू नो अबाउट द इनकम और एक्सपेंडिचर. आपका मेंबरशिप फीस होता है, आप मेंबरशिप फी पेड करते हो, तो कितना इनकम है आपका सर्विस एसोसिएशन का, कितना इनकम है, किस किस जगह में एक्सपेंडिचर हुआ है, वो भी आपका राइट है. एज ए मेंबर यू मस्ट नो. इलेक्शन अनाउंसमेंट, जो एसोसिएशन है उसका जो सेक्रेटरी है, कि जो डिप्टी सेक्रेटरी है, कि जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स है, तो उनका इलेक्शन से उनका नॉमिनेशन होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. मेंबरशिप आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिमाइंडर्स, आपको रिमाइंडर दिया जाएगा. यदि आपका कोई आउटस्टैंडिंग फ़ी है, एज ए मेंबर आप पेड नहीं किया है, तो आपको रिमाइंड किया जाएगा. ये सब डिस्प्ले होगा. ओके, आपका ऑफिस में क्लियर एक प्लेस है जहाँ पर ये डिस्प्ले होगा. ठीक है, ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप यू आर द मेंबर ऑफ द सर्विस एसोसिएशन, एंड दीज थिंग्स शुड बी डिस्प्लेस्ड इन योर ऑफिस कैंपस. वन प्लेस मस्ट बी देयर, and your union should display all these things. When the meeting will be conducted, at what time meeting will be conducted, what is the income of the association, and in what is the expense in different areas, when election will be conducted to choose secretary, deputy secretary and executives. If any outstanding due you are having, then also the reminder also given to you, and within stipulated date you can pay, right? Next one, announcements related to matters by union allowed except. यहाँ पर क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 में है, नॉट ए क्रिटिसिज्म. आपको आज ए मेंबर आप किसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्यों? यूनानिमसली सम डिसीजंस एक्चुअली टेकन बाय द एसोसिएशन, सो ओपनली यू शुड नॉट क्रिटिसाइज इट, बिकॉज यू आर द मेंबर. ऑन योर फेवर एक्चुअली द एसोसिएशन हैज टेकन सम डिसीजन. Okay, association members have taken some decision, so you should not criticize it, right?
नॉट सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन। आपका जो डिसिप्लिन है, एसोसिएशन में आप मेंबर हो, उसका एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है। ओके, यू मस्ट फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिन, यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द डिसिप्लिन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ईच एंड एवरी टाइम द बेसिकली वी आर द मेंबर ऑफ द member affairs service association, we strictly adhere to the discipline rules and regulations. Next one, not with offensive language। कोई ऐसा offensive language हम यूज़ नहीं करेंगे। we all are the members, we all are the intellectual members, so we must abstain from actually offensive type of language। okay, we should not use actually that type of language to others। नॉट अटैक्स ऑन इंडिविजुअल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको डिफरेंट ओपिनियंस होता है जब एसोसिएशन का डिस्कशन होगा। वी ऑल आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वी ऑल आर द मेंबर्स एंड डिफरेंट मेंबर्स हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। सो वहाँ पर हम किसको पर्सनली अटैक नहीं करेंगे। सबका ओपिनियन दे सकते हैं, मगर अल्टीमेटली एक्चुअली मेजोरिटी मेंबर्स व्हाट डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी मेंबर्स इट वुड बी फाइनलाइज्ड। सो हम किसको पर्सनली अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबको आपको ध्यान देना है, राइट। तो ये रूल 6 था रिलेटेड टू द एसोसिएशन, समझ में आ गया। फिर हम रूल 7 में चलेंगे। रूल 7 रिलेटेड टू द डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। ये रूल 7 के ऊपर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन व्हिच रूल ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 there is explanation of demonstration and strikes। It is rule 7। no government servant shall engage himself in any demonstration, strike, घेराव और meetings। एक्चुअली रूल है कि there is no right of the government servant to conduct any type of meeting unauthorizedly, to go for strike, to pen down the work, okay, and go for strike, congregate manner actually leading the demonstration, okay, and घेराव basically sometimes actually it means घेराव the higher authorities। तो ये नहीं होना चाहिए। ये होगा तो हम कंडक्ट रूल को ब्रीच करेंगे और हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। स्ट्राइक को थोड़ा यहाँ पर डिफाइन किया गया है, आप देख लीजिए हाउ टू डिफाइन स्ट्राइक। मास abstention without permission, mass abstention without permission। आप परमिशन नहीं लिया and you basically abstain from the work, बड़े मास मैनर आप क्या किए, काम छोड़ दिए, काम नहीं किए और स्ट्राइक में चले गए। सो मास abstention without permission, बिना परमिशन से you set apart yourself from the work in congregation, in conglomeration manner, collective manner, you go for strike without permission। clear। refusal to work overtime। कभी कभी ओवर टाइम वर्क हमको करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से, क्योंकि जो हम सैलरी ले रहे हैं तो पब्लिक वर्क को हम डील करते हैं। ईच एंड एवरी टाइम वी आर डीलिंग विद द पब्लिक वर्क, so we should have providing justice to the people timely। so sometimes actually overtime work is required to complete the public works in time, मगर हम इसको रिफ्यूज़ करेंगे। नो हम ओवरटाइम वर्क नहीं करेंगे। कभी कभी मैंडेटरी है ओवरटाइम वर्क करने के लिए, क्योंकि वो जो पब्लिक वर्क है हम स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो हम उसको रिफ्यूज़ करते हैं, वो भी स्ट्राइक में आ जाएगा। गो स्लोली काम करना, पेन डाउन, ओके, काम छोड़कर बैठना, स्टे इन, टोकन, सिंपैथेटिक, बंद, ये सब स्ट्राइक में आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चन आता है। रिफ्यूजल टू डू ओवर टाइम वर्क, mass manner actually abstain from the work, refrain from the work, okay, go slow, knowingly actually just imitate dilatory tactics, delayed type of tactics। आप जिस टाइम में आपका क्या है, डिवोशन टू ड्यूटी, टाइमली काम करना है, टाइमली काम नहीं करेंगे, स्लोली काम करेंगे, ओके। और पेन डाउन, हम ऐसा कोई काम बहुत कुछ नोट्स हमको लिखना पड़ता है, ये इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे।
तो ये सब स्ट्राइक में आ जाता है, राइट। ये हो गया स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, रूल 7 में आ जाता है। चलो रूल 8 को चलेंगे। रूल 8 में मीडिया के ऊपर है, कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया। जब प्रेस और मीडिया का बात आएगा तब रूल 8 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 बेसिकली डील्स विथ कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल except with the previous sanction of the government own wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper other periodical publication or electronic media। इसमें क्या है, आप गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहिए। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यू शुड हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी नीड सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यदि आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, न्यूज़पेपर एडिटिंग, कुछ पीरियोडिकल पब्लिकेशन करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप कुछ व्यू देना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है और गवर्नमेंट से परमिशन सैंक्शन मिलने के बाद, परमिशन मिलने के बाद हम पीरियोडिकल पब्लिकेशन कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एडिटिंग में भाग ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विदाउट परमिशन एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, इफ द गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन देन वी मस्ट इन्वॉल्व आवर सेल्फ एक्चुअली इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मगर बिना परमिशन से नहीं होगा। आप कोई ऐसे विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉई विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट पब्लिश एनी पीरियोडिकल्स। ओके, इट मीन्स यू कैन नॉट एडिट द न्यूज़ पेपर्स, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा काम हो गया ना। आप एम्प्लॉई हो, आप सैलरी ले रहे हो और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर ये में जाकर एडिट कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको सैलरी कुछ आप सैलरी लोगे, तो ये नहीं, ये रूल को डेविएट करता है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप काम करते हो तो वो भी बिना परमिशन से, ये रूल को ब्रीच करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। सेकेंड में क्या है, यदि nothing in sub rule 1 shall apply in case a government servant in the bona fide discharge of his official duties publishes a book or participates in a public media। आपका ऑफिशियल ड्यूटीज है, ये आपका ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी है। आप बुक पब्लिश करोगे, आप मीडिया में पार्टिसिपेट करोगे, तो ये आपका ड्यूटी है। तो ये जो ड्यूटी का प्रोटोकॉल होता है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें एक्चुअली जो सब रूल 1 वो लागू नहीं होगा। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ योर ऑफिशियल ड्यूटी टू पब्लिश द बुक, इट इज़ योर ऑफिशियल ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक मीडिया। तो उसमें कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग ए बुक और पार्टिसिपेटिंग इन ए पब्लिक मीडिया shall at all times make it clear that the views expressed by him are his own and not that of government। यदि आज ऑफिशियल ड्यूटी, आप कोई बुक पब्लिश करोगे ऑफिशियल ड्यूटी के हिसाब से, क्योंकि आपका वो ऑफिशियल ड्यूटी है, आप बुक पब्लिश कर सकते हो, आप पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर वहाँ पर आपका जो ओपिनियन होगा वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि ये गवर्नमेंट का ओपिनियन है। इट इज़ क्लियर दैट, देखिए ये सेंटेंस, इट इज़ क्लियर दैट व्यूज एक्सप्रेस बाय हिम आर हिज ओन। आप जो व्यू दे रहे हो वो आपका है, नॉट दैट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको परमिशन मिला, सपोज गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कि आप बुक पब्लिश कर सकते हो, पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर वहाँ पर आपका ओपिनियन जो होगा, वहाँ पे आपका जो व्यू होगा वो आपका इंडिविजुअलिस्टिक व्यू होगा, वो गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, कनेक्शन विथ प्रेस और रेडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट फॉर आप परमिशन मांगना है आपको। सपोज आप बुक पब्लिश करना चाहते हो कि आप पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ओके, और न्यूज़पेपर इट मीन्स एडिटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद 30 डेज के अंदर आपको परमिशन मिला कि नहीं ऐसे जवाब आ जाएगा गवर्नमेंट से। और 30 डेज वो सरपास हो गया, 30 डेज चला गया, मगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला,
तो इससे पता चल गया कि गवर्नमेंट परमिशन आपको दे दिया। जो डेडलाइन है 30 डेज है। आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करना चाहिए, आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं बुक पब्लिश करना चाहता हूँ, ओके, मेरा पार्टिसिपेशन है न्यूज़पेपर एडिटिंग में। तो आप गवर्नमेंट को इंटीमेट किया और 30 डेज आपको वेट करना है। 30 डेज के अंदर आपको गवर्नमेंट परमिशन देगा कि नहीं, ऐसा आपको लेटर मिल जाएगा। विद इन 30 डेज एक्चुअली यू कैन गेट लेटर वेदर गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन और नॉट। और 30 डेज क्रॉस हो गया मगर ऐसा कुछ परमिशन नहीं मिला, तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। इट इज़ अज्यूम दैट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, रूल 9 है, CCS कंडक्ट रूल 9, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट, रूल को याद रखना है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall in radio or media publish in his name anonymously or pseudonymously or in the name of any other person or any communication to the press or in any public utterance make any statement adverse criticism on government policy। ये इसमें क्या है, आप रेडियो, चाहे रेडियो टेलीविज़न और एनी मीडिया चैनल में आप पार्टिसिपेट करोगे, चाहे आपका नाम पे ऑन योर नेम और एनी अनोनिमस नेम और ऑन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, मगर वहाँ पर आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में जाएगा। आपका ये राइट नहीं है, यू आर हैविंग नो राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। समझ में आ रहा है? तो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्लियर? ये रूल 9 में क्लियरली मेंशन है। आप मीडिया में पार्टिसिपेट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है, ऑन योर नेम और एनी एनोनिमस नेम और ऑन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, बट यू शुड नॉट हैव टेल एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट, और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, राइट, आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज shall not express views on Indian and foreign affairs। आप फॉरेन कंट्री को सपोज विजिट करते हो, ओके, आज गवर्नमेंट सर्वेंट यू विजिट टू द फॉरेन कंट्रीज, मगर वहाँ पर आप ऐसा कोई व्यू हमारा कंट्री के अगेंस्ट में हम नहीं देंगे और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे मीडिया में। इफ़ यू विजिट टू द फॉरेन कंट्रीज, इफ़ यू विजिट टू द अब्रोड, देन you should not view or express anything against India or against any or it means against foreign affairs। you are having no right। आप वहाँ पर मीडिया में पार्टिसिपेट करके इंडिया का पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते कि जो फॉरेन अफेयर्स है, हमारा कंट्री का जो अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, चाहे डेमोक्रेटिक है कि फाइनेंशियल है कि ट्रेड है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोल नहीं सकते। यूनियंस पासिंग रेजोल्यूशंस ऑन इशूज विच इन्वॉल्व वायोलेशन ऑफ द रूल बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जो यूनियन, जो सर्विस यूनियन है, जो यूनानिमसली वो जो रेजोल्यूशन पास होता है, इंडिविजुअली आप उसका अगेंस्ट में कोई ओपिनियन, कोई व्यू नहीं दे सकते, क्योंकि यूनानिमसली द यूनियन हैज टेकन डिसीजन इन द फेवर ऑफ ऑल। सबका सहमति से एक्चुअली रेजोल्यूशन पास हुआ है यूनियन में, तो आप इंडिविजुअली उसको उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, ओपिनियन नहीं दे सकते, उसका अगेंस्ट में ओपिनियन नहीं दे सकते, उसके अगेंस्ट में कुछ व्यू नहीं दे सकते। तो वही है, वो वायोलेशन होगा। आपका यूनियन ने यूनानिमसली कुछ रेजोल्यूशन पास किया, आप उसके अगेंस्ट में हो, आप उसको ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप ओपनली उसका अगेंस्ट में व्यू दे रहे हो, ये वायोलेशन है, कंडक्ट रूल का वायोलेशन है, वहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। एस्टीमेट कमिटीज रिकमेंडेशन फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स, ये क्वेश्चन आता है जो अंडरलाइन किया। एस्टीमेट कमिटीज रिकमेंडेशन, हुज रिकमेंडेशन फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स, फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स टू एक्सप्रेस देयर डिफरेंट व्यूज। एस्टीमेट कमिटी वो रिकमेंड किया है कि ऑफिसर्स के पास फ्रीडम होना चाहिए। ऑफिसर्स का ओपिनियन डिफरेंट होगा तो उनको फ्रीडम देना चाहिए, वो उनका डिफरेंट ओपिनियन वो दे सकते हैं। ये एस्टीमेट कमेटी का रिकमेंडेशन है फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स टू एक्सप्रेस देयर डिफरेंट व्यूज।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 10 को चलेंगे। एविडेंस बिफोर ए कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। यहाँ पर कमिटी के ऊपर आ गया रूल 10 सीसीएस कंडक्ट रूल्स। ये रूल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल के ऊपर अभी क्वेश्चन आ रहा है। तो एविडेंस बिफोर ए कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट नेसेसरी। आप कोई आज ए विटनेस, आप कोई कमिटी में आज विटनेस आप जा रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना चाहिए। बिना गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन से आप कोई भी कमिटी में विटनेस के आकार में आपका ओपिनियन नहीं दे सकते। इसके लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए। जीएस नॉट टू गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी और एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड में, अच्छा आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया कि आप कोई कमिटी में आज विटनेस आप ओपिनियन दे सकते हो, तो आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया, मगर वहाँ पर आप आज विटनेस कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, कोई गवर्नमेंट एक्शन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया, बिना परमिशन से आप कोई भी कमिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा कमिटीज़ है जो गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, आगे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और कोई कमिटी में आप पार्टिसिपेट करते हो, आज विटनेस, आप कुछ ओपिनियन देना है, आप गवर्नमेंट आपको परमिशन दिया, मगर आप वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कि गवर्नमेंट एक्शन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा कमिटीज़ है जिसमें आपका गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए। एविडेंस गिवन एट, ये है फास्ट देखिए, नथिंग इन द रूल अप्लाइज टू। यहाँ पर गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का नहीं चाहिए। एविडेंस गिवन एट एनी इंक्वायरी बिफोर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ इंक्वायरी कर रहा है, तो वहाँ पर आपको एविडेंस गिवन एट एनी इंक्वायरी, वो इंक्वायरी में आपको एविडेंस देना है। वहाँ पर कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इंक्वायरी चल रहा है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट चल रहा है। वहाँ पर आप एविडेंस दे सकते हो, वहाँ पर कोई आप गवर्नमेंट से परमिशन, प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन, जुडिशियल इंक्वायरी। कोई जुडिशियल इंक्वायरी में आपको एविडेंस देना है कि आज ये विटनेस आपको कुछ ओपिनियन देना है, तो वहाँ पर प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का नहीं चाहिए। देयर इज नो नीड टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है, आप विटनेस हो, तो वहाँ पर भी प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए आज विटनेस टू पार्टिसिपेट इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी, इसमें आप ओपिनियन दे रहे हो कि व्यू दे रहे हो, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसमें कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। एविडेंस बिफोर पे कमीशन इंडिविजुअली आप पे कमीशन को एविडेंस दे सकते हो, इंडिविजुअली आप दे सकते हो। आपका पर्सनल ग्रीवेंस आप वहाँ पर एविडेंस कमीशन को नहीं दे सकते, मगर जो पे कमीशन को आप एविडेंस इंडिविजुअली दे सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस एसोसिएशन, जो आपका सर्विस एसोसिएशन है उसके तरफ से आप मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस बिफोर पे कमीशन को आप मेमोरेंडम दे सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस एसोसिएशन आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस केस में कोई गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी, एविडेंस गिवन टू द पे कमीशन इंडिविजुअली कि ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन आज गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग मेमोरेंडम टू पे कमीशन, इसमें कोई प्रायर परमिशन जरूरत नहीं है। कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में कोई इंक्वायरी चल रहा है और आप विटनेस हो, मगर इसके अलावा और कोई ऐसा कमिटी में आप पार्टिसिपेट करोगे तो प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का चाहिए। और वहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन आपको दे दिया, वहाँ पर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को, एक्शंस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अभी क्वेश्चंस को चलेंगे। मैं बोला था 15 वेरी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो बेसिकली नाउ ए डेज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, that type of questions already I have framed. So it is very important one. You see, choose the correct rules from CCS conduct rules 1964 which shows that आप correct rule को डिटेक्ट करना है। Two statements given, statement X and statement Y. Every government servant shall at all times maintain courtesy and good behavior with the public. Another one, no government servant shall in the performance of his official duties
एक्ट इन ए डिसकर्टियस मैनर। आपको आप देख लीजिए जो स्टेटमेंट वाई है, स्टेटमेंट वाई जो है रूल 3 सेक्शन ए, राइट, और उसका सब सेक्शन ए देख लीजिए। इसमें क्लियरली सेकेंड जो है वाई का स्टेटमेंट के बारे में बताया। इसमें जो 3A रूल 3 है वो प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टेसी के ऊपर है, और इसमें दो सबसेक्शन है, ए है बी है। ए में क्या है, कोई भी गवर्नमेंट ईच एंड एवरी टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डील विद द पब्लिक इन कॉर्टियस मैनर। यू शुड नॉट इट मीन्स नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल डील विद द पब्लिक इन डिसकर्टियस मैनर। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि आप बेसिकली पब्लिक वर्क में इन्वॉल्व हो, उसी वर्क के लिए आप सैलरी ले रहे हो, तो पब्लिक के साथ अच्छे से डील करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, ठीक है। तो ये जो रूल 3A है, 3A का सबसेक्शन ए बी है, तो वो ए में आता है। और बी में क्या है, आप कोई डायलेटरी टैक्टिक्स को फॉलो नहीं कर सकते, आपका वर्क डिले नहीं होगा। टाइमली यू मस्ट कंप्लीट द वर्क एंड जस्टिफाई टू द पीपल। फ्रॉम योर साइड देयर इज नो डायलेटरी टैक्टिक्स टू डिले द वर्क। सेकेंड वन, आप डिले नहीं कर सकते। मगर यहां पर दिया है स्टेटमेंट वाई क्लियर हो गया 3AA, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रूल 3(1) XI में है, क्योंकि रूल जो है आप कंडक्ट रूल 3 सबसेक्शन 1 में बहुत कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको फॉलो करना है, उसको आप ब्रीच करोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो आप उसका XI देख लीजिए। फास्ट जो X का जो स्टेटमेंट है क्लियरली है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड लॉट टाइम्स मेंटेन कॉर्टेसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। वो 3(1) 11th बीट में है। और सेकेंड वन जो दिया, नो गवर्नमेंट सर्वेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट इन ए डिसकर्टियस मैनर, ये रूल 3A सबसेक्शन ए में है, क्योंकि उसमें दो प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी है। जो रूल 3A है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, तो जो उसका फर्स्ट सेक्शन ए है उसमें क्लियरली दिया है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट डील विद द पब्लिक इन डिसकर्टियस मैनर। सेकेंड वन दिया है कि the government servant should not use any type of dilatory tactics to delay the work, okay, related to the public। ये है, तो आपको आंसर मिल गया। इसका आंसर है बीट ए है, ठीक है, बीट ए है। जो 3(1) का रूल 3(1) का XI है, ये रूल 3(1) 11th बीट है, और ये जो रूल 3A का फास्ट बीट है, ठीक है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा, ओके, आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ए गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स इन हिज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द पब्लिक और अदरवाइज इज अडॉप्टिंग डायलेटरी टैक्टिक्स और willfully causing delays in disposal of the work assigned to him. This act of government servant is in contravention of what rule under CCS Conduct Rules 1964। आप देखिए रूल 3A, जो रूल 3A है वो प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के ऊपर है। मैं लिख देता हूँ, इसको मैं डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के ऊपर है, और इसमें दो सेक्शन है। जो उसका बीट बी में क्लियरली मेंशन है, इसी का रूल 3A का दो सेक्शन से। जो सेकेंड सेक्शन जो बी है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप को टाइमली वर्क कंप्लीट करना है। ऐसा कोई डायलेटरी टैक्टिक्स आपको फॉलो नहीं करना है, जो जानबूझकर वर्क को डिले कर रहे हो, ये नहीं कर सकते आप। और उसका ए में बोला था, ये रूल 3A का, इसमें क्या था कि आप पब्लिक के साथ अच्छे से डील करना है, उनको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें था क्या था, इट मीन्स द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट डील विद द पब्लिक इन डिसकर्टियस मैनर, क्लियर। तो उसमें ये रूल 3A है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के ऊपर, क्योंकि
इसमें आपको 3A में ये 3B में क्या है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, और 3C क्या है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन ऑफिसेस। सो ये 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 3 है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। इसमें आपको और एक बार थोड़ा बता देता हूँ, इसमें क्या है एक्चुअली जो आंसर है ये रूल ए है, ठीक है, यही आंसर है, बीट ए आंसर है। रूल 3A में क्या है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। आपको सभी समय ईच एंड एवरी टाइम अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए पब्लिक को, ठीक है। और उसमें है आप कोई भी किसी भी समय में जानबूझकर आप वर्क को डिले नहीं कर सकते। और रूल 3B ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज में सपोज एज ऑफ मैरिज की, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब, और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सब आता है रूल 3B में। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रूल 3B आप देख लीजिए, मेरा फर्स्ट वीडियो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। रूल 3C में क्या है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। अभी ये जो आंसर है रूल 3A है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रूल members under CCS conduct rules 1964 which specifies that every government servant shall at all times maintain devotion to duty, do nothing which is unbecoming of a government servant, maintain absolute integrity। तो मैं ये जो इंटीग्रिटी देख लीजिए, मेरा फर्स्ट वीडियो बम्पर MCQ 1 3.1 बीट आई 3.1 सबसेक्शन आई में इंटीग्रिटी के ऊपर है, और वही रूल 3.1 डबल आई में क्या है ना, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। और रूल 3.1 ओके जो थर्ड सेक्शन है, डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आप आंसर देख लीजिए, फर्स्ट इंटीग्रिटी है, आपको ट्रांसपेरेंटली काम करना है, ठीक है, आपको ऑनेस्टली काम करना है, तो वो रूल 3.1 सबसेक्शन आई में है। डिवोशन टू ड्यूटी, तो आप उसके लिए सैलरी ले रहे हो, तो आप सभी समय टाइमली ड्यूटी करना है, जानबूझकर हैबिचुअली लेट नहीं होना चाहिए। टाइमली ड्यूटी करोगे तो आप टाइमली काम खत्म कर सकते हो और पब्लिक को जस्टिफाई कर सकते हो, तो वो रूल 3.1 डबल आई में है। डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, क्लियर। सपोज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअली harass the women employees, ये सब इसमें आ जाता है। डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ रूल 3.1 ट्रिपल आई में है। अभी आंसर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आंसर इसका सी होगा, क्योंकि एक्स जो है मैं लिख दिया 3.1 डबल आई, वाई रूल 3.1 ट्रिपल आई, और जेड रूल 3.1 आई, क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्राइक्स अभी मैं बताया, आप CCS कंडक्ट रूल्स का रूल 7 जो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक के ऊपर है। स्ट्राइक्स इंक्लूड मास अब्सटेंशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, ये करेक्ट है। आप जब क्या किए, वर्क छोड़ के मास के आकार में काम छोड़ दिया और चले गए, तो वो स्ट्राइक माना जाएगा। और ओवर टाइम वर्क को आप रिफ्यूज कर दिए, कभी कभी मैंडेटरी है ओवर टाइम वर्क, क्योंकि पब्लिक वर्क को हमको टाइमली कंप्लीट करना है, और ओवर टाइम से ही वो ख़त्म होगा टाइमली, मगर उसको हम रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम ओवर टाइम वर्क नहीं करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो भी स्ट्राइक हो गया, ठीक है, वो स्ट्राइक में इंक्लूड होगा। और रिजोर्ट टू प्रैक्टिसेस और कंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू रिजल्ट इन और रिजल्ट्स इन द सिसेशन और सब्सटेंशियल रिटार्डेशन ऑफ वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज कॉल्ड गो स्लो, ये दे दिया, गो स्लो, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, ये सब स्ट्राइक में आ जाता है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है अभी मैं स्ट्राइक के ऊपर बताया था, रूल 7 को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर जो आंसर होगा रूल डी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत इजी था, अभी मैं डिस्कस किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हम डिटेक्ट करेंगे। प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज में हमको लिबरली परमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आप गवर्नमेंट को परमिशन मांगने से मिल जाता है भारत सेवक समाज में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है।
पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अवॉइडेड। कल मैं बोला था आप इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। ओनली लैंग्वेज क्लास, कोई फॉरेन लैंग्वेज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस केस में गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। मगर इस केस में आप पार्टिसिपेट करोगे इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। ओनली लैंग्वेज क्लासेस के लिए प्रायर परमिशन चाहिए, ये भी करेक्ट है। मियर इंटीमेशन सफिशिएंट टू ज्वाइन संयुक्त सदाचार समिति। अब मियर इंटीमेशन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि जो भारत सेवक समाज, संयुक्त सदाचार समिति, इसमें परमिशन मिल जाता है। मगर इसमें रूल है कि आप इसमें जो जब इन्वॉल्व होकर काम करोगे आपका कोई ऑफिशियल वर्क हम पर नहीं होगा। प्रायर परमिशन इज नेसेसरी टू ज्वाइन फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस कंडक्टेड बाय इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं अभी बताया था आप इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर प्रायर परमिशन ज़रूरत है। आपको गवर्नमेंट परमिशन दिया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरा प्रीवियस बम्पर 1 जो वीडियो है उसमें देख लीजिए, ये सब एक्सप्लेन में किया था। तो ये चारों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये तो चारों तो करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिट सी, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। एवरी पर्सन, अच्छा, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 साल अप्लाई टू, किसके लिए अप्लीकेबल है सीसीएस कंडक्ट रूल्स, ये भी मेरा फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया था किसके लिए अप्लीकेबल है, रूल अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विस और पोस्ट, उनके लिए अप्लीकेबल है। जो भी सिविल सर्विस और पोस्ट में इन्वॉल्व है उनके लिए रूल अप्लीकेबल है। सिविलियन डिफेंस सर्विस, उनके लिए अप्लीकेबल है जो डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं मगर वो सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं, जो ऑफिशियल वर्क में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए रूल अप्लीकेबल है। रेलवे सर्वेंट के लिए कॉन्डक्ट रूल अलग है, ऑल इंडिया सर्विस के लिए कॉन्डक्ट रूल अलग है, इनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया, I&II, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉपर sitting arrangements for the member of parliament should be made at public functions organized by a government office. In the warrant of precedence, the member of parliaments appear. तो यहाँ पर जो है, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, जो एमपी है, उनका पोजीशन क्या होगा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में। उनका जो चेयर होगा, उनका जो सीट होगा, कैसे होगा ये आपको याद रखना है। उनका जो सीट रहेगा, जो सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अबोव में रहेगा। सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप याद रखना है, जो सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका अबोव रैंक में एमपी रहेंगे, मेंबर ऑफ द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहेंगे। आंसर मिल गया आपको, अबोव द ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही रहेगा। उनका जो चेयर रहेगा, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, तो उनका जो सीट रहेगा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में, जो रैंक ऑफिसर्स रैंक ऑफ द सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका रैंक से अबोव में रहेगा। अदर सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 को चलेंगे। टू अटेंड द रेफरेंसेस फ्रॉम कमिटीज, references from the committees of parliament promptly, a senior officer should be charged with the responsibility for ensuring this at the level of। तो पार्लियामेंट का डिफरेंट कमिटीज़ होता है, उनसे कुछ रिफरेंस आया। ओके, जो पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ है उनसे कुछ रिफरेंस आया, तो वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि जवाब देने के लिए। इन दैट केस एक्चुअली द सीनियर ऑफिसर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द सीनियर ऑफिसर टू गिव द opinion, to give the view or any type of data or anything what the committee need, what the committee of the parliament need। तो इस केस में ये सीनियर ऑफिसर कौन होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, डेप्यूटी सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, एडिशनल सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, डायरेक्टर और इक्विवेलेंट। यहाँ पर याद रखना है, जो सीनियर ऑफिसर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जवाब देने के लिए, जो कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट मांगा है उसका जवाब देने के लिए जो हम सीनियर ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसका जो रैंक रहेगा जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट रहेगा।
ओके, एक वीडियो में आगे में मैं लाऊंगा जो ऑफिशियल प्रोसीजियर है, उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा जो एक्सट्रैक्ट है ऑफिस रिलेटेड टू द ऑफिशियल प्रोसीजियर, तो उसमें आपको, मगर अभी याद रखना है कोई भी पार्लियामेंट कमेटी से जब कुछ रेफरेंस आता है वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है जवाब देने के लिए, और जो सीनियर ऑफिसर का रैंक रहेगा वो जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्ट फॉर्म्स टू एड्रेस द एमपी इन कम्युनिकेशन। जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उनको हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा। तो ये जो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा हम नहीं बोल सकते। उनको जो हम एड्रेस करेंगे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, इसमें हम संबोधन कर सकते हैं। मगर हम ये नहीं बोलेंगे ये मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन आई एंड डबल आई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, as per CCS conduct rules 1964 and GIDs thereof, while making sitting arrangements at public functions, the position of members of parliament should be made in such a way that has been clearly brought out in the। तो अभी मैं बताया था जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का जो पोजीशन होगा, जो सीट होगा, वो सभी समय जो बेसिकली सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे अबव होगा, और उसको हम वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। यही करेक्ट है, बी, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। ये जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, एमपी का जो पोजीशन सीट रहेगा, इट इज ऑलवेज अबव द सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू CCS conduct rules 1964 and GIDs thereof, when a visitor has come to meet an officer by the previous appointment and a member of parliament or of a state legislature has come without an appointment, the correct course of action for the officer would be। Suppose आप ऑफिसर हो, प्रीवियस अपॉइंटमेंट लेके एक मेंबर ने विजिट किया आपसे बात करने के लिए, प्रीवियस अपॉइंटमेंट लेकर आया, और उसी समय ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कि ऑनरेबल स्टेट लेजिस्लेचर, यानी सपोज मेंबर ऑफ द स्टेट MLAs, वो आ गए आपको मीट करने के लिए। एक जो विजिटर आया वो प्रायर अपॉइंटमेंट में आया, मगर जो ऑनरेबल MP एंड ऑनरेबल MLA आ गए वो विदाउट अपॉइंटमेंट में आ गए, तो आप उनको कैसे डील करोगे? तो आपको याद रखना है जो विजिटर आया, जो प्रायर अपॉइंटमेंट लेके, उसको फर्स्ट आप मीट करोगे, इमीडिएटली उसके बाद ऑनरेबल MP एंड ऑनरेबल MLA के साथ आपको मीट करना है, ठीक है। उसका रूल है यही है, तो इसको याद रखना है। तो वही है, फर्स्ट जो प्रायर अपॉइंटमेंट लेके जो विजिटर आया आप उससे बातचीत कर लेना है, इमीडिएटली उसके बाद ऑनरेबल MP एंड ऑनरेबल MLA वो जो आ गए वो बिना अपॉइंटमेंट से आ गए, तो इमीडिएटली विजिटर के बाद आप उनसे डील करना है। तो वही है, यहाँ पर जो आंसर होगा बी होगा, सी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमीडिएटली आफ्टर द ऑफिसर हैज मेट द विजिटर हु हैड कम बाय प्रीवियस अपॉइंटमेंट। जो विजिटर आया प्रीवियस अपॉइंटमेंट लेके, उसको फर्स्ट आप मीट करना है, और इमीडिएटली उसके बाद ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को आपको मीट करना है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आ गए वो बिना अपॉइंटमेंट से आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, in accordance with the CCS conduct rules 1964 and GIDs thereof, if a junior officer receives oral instructions from the minister or from his personal staff and the orders are in accordance with the norms, rules, regulations or procedures, the appropriate course of action by the junior officer। देखिए ये भी एक ऑफिशियल एक्सट्रैक्ट से है क्वेश्चन। जूनियर ऑफिसर को ओरल इंस्ट्रक्शन मिला मिनिस्टर से और उनका पर्सनल स्टाफ से, मगर जो इन्फॉर्मेशन मिला वो अकॉर्डिंग टू द रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स, प्रोसीजर के हिसाब से ओरल इंस्ट्रक्शन मिला, चाहे ऑनरेबल मिनिस्टर से और चाहे पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिनिस्टर्स। तो जूनियर ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ, ओरल इंस्ट्रक्शन रिसीव हुआ जो रूल के हिसाब से है, नॉर्म के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से है। तो वहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होगा?
ना जूनियर ऑफिसर क्या करेगा उस इसमें बता देता हूँ। जूनियर ऑफिसर इसको नोटिस में लाएगा, जो सेक्रेटरी है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए इसको नोटिस करेगा। तो इमीडिएटली जूनियर ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म टू द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन रिगार्डिंग टू दिस कि मुझे इससे ओरल इंस्ट्रक्शन मिला, मगर जो ओरल इंस्ट्रक्शन ऑनरेबल मिनिस्टर से मिला कि उनका जो प्राइवेट पर्सनल स्टाफ से मिला वो रूल के हिसाब से है, प्रोसीजर के हिसाब से है। और इमीडिएटली जूनियर ऑफिसर वो किसको इन्फॉर्म करेगा, ना सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और उनको भी ये इन्फॉर्म करेगा कि ये रूल के हिसाब से मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो रूल के हिसाब से है, प्रोसीजर के हिसाब से है। तो अभी आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दे शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, according to CCS Conduct Rules 1964 and GIDs thereof, if a junior officer receives oral instructions from the minister or from his personal staff and the orders are not in accordance with the norms, rules, regulations or procedures, the appropriate course of action by the junior officer would be to। इसमें क्या है, सेम है। जूनियर ऑफिसर को ओरल इंस्ट्रक्शन मिला ऑनरेबल मिनिस्टर से और उनका पर्सनल स्टाफ से, राइट, मगर वो जो ओरल इंस्ट्रक्शन मिला वो रूल के हिसाब से नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन ही गॉट, एक्चुअली इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। वो रूल के हिसाब से नहीं है कि प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है। तो इस केस में क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, वहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जूनियर ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, और वहाँ पर भी बोलेगा कि जो ओरल इंस्ट्रक्शन मिला है वो रूल के हिसाब से नहीं है, कि वो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है, कि वो नॉर्म के हिसाब से नहीं है। तो फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, राइट। तो आपको आंसर मिल गया। तो जूनियर ऑफिसर, दे मीन्स जूनियर ऑफिसर शुड सीक फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द सेक्रेटरी और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statements are incorrect according to CCS Conduct Rules 1964? आप देख लीजिए, परमिशन नॉट नेसेसरी फॉर सीकिंग रिड्रेस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस। ये एक्चुअली करेक्ट है। आपका सर्विस मैटर में आप पर्सनल ग्रीवेंस डाल सकते हो कोर्ट में, ऐसे कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन, देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट परमिशन इफ यू वांट टू आई मीन्स लॉज केस इन द कोर्ट अगेंस्ट एनी सर्विस मैटर्स। कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस किया था। ज्वाइनिंग सिविल डिफेंस सर्विसेज परमिसिबल, आप सिविल डिफेंस सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको परमिशन लेना है, मगर परमिशन मिल जाएगा, ठीक है, मगर वहाँ पर ऑफिशियल वर्क काम पर नहीं होगा, परमिशन आपको मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू बी एनकरेज टू ज्वाइन होम गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि आप होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो, ये भी करेक्ट है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू बी एनकरेज टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, तो ये सब करेक्ट है स्टेटमेंट्स, मगर इनकरेक्ट पूछा है। ये चारों स्टेटमेंट में करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन टू लॉज द केस अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ओके, इन द कोर्ट। देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। Joining civil defense service permissible. Always the government servants should be encouraged to join home guard organization. Always the government servants should be encouraged to join territorial army. ये सब स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो नॉन ऑफ दिस। इस तरीके का आजकल क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिलेशन टू द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली, if any legal proceedings on a claim of maintenance of the family of government servant by the party affected on this behalf be pending in a court of law, the course of action on this ground by the department would be to। तो आपको यहाँ पर क्या है, सपोज मेंटेनेंस के लिए वाइफ केस लॉज किया है हस्बैंड के अगेंस्ट में, वाइफ केस लॉज किया है कोर्ट में हस्बैंड के अगेंस्ट में मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्यूट था हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, और वहाँ पर वाइफ लॉज किया है कि मुझे मेंटेनेंस हस्बैंड से चाहिए। तो ये केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तो वहाँ पर आपका डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा?
तो ये आपको याद रखना है, जब कोर्ट में पेंडिंग है वहाँ पर आपका डिपार्टमेंट कुछ एक्शन नहीं ले सकता। कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट एक्चुअली फाइनल करेगा कि जो क्लेम किया है मेंटेनेंस के ऊपर वाइफ ने वो दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी पेंडिंग है। सो वी मस्ट वेट फॉर द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो वहाँ पर डिपार्टमेंट कोई कुछ बोल नहीं सकता और कुछ एक्शन लेगा गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो वही है, 4 ऑप्शन है। एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बी टेकन ऑन दिस ग्राउंड, आज सच एक्शन में बी कंस्टिट्यूट बाय द कोर्ट टू अमाउंट टू कंटेम्प्ट। यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले सकता डिपार्टमेंट ने, क्योंकि अभी जो केस है वो ऑलरेडी कोर्ट में है। ओके, एंड इसके ऊपर अभी कोर्ट का डिसीजन फाइनल होने के बाद क्या एक्शन गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लिया जाएगा वो डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट। और अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, मीन्स द डिपार्टमेंट हैज़ नॉट इनिशिएट एनी टाइप ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी अदर ऑप्शन है, क्या माइनर पेनल्टी है, ये नहीं हो सकता, कि मेजर पेनल्टी ये से लगा देगा नहीं, और सैलरी से रिकवरी होगा, ये भी नहीं, ये सब नहीं होगा। मगर जब कोर्ट फाइनल डिसीजन देगा कि आपका उनका सैलरी से रिकवरी करो, ये मेजर पेनल्टी लगाओ कि माइनर पेनल्टी लगाओ, जो कोर्ट का डिसीजन जो फाइनल होगा वही होगा। ओके, मगर कोर्ट में जब तक केस है डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकता। डिपार्टमेंट एक्शन लेता है तो वो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आज 15 क्वेश्चंस था। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। वेट फॉर द थर्ड पार्ट. Definitely I will discuss everything related to the CCS Conduct Rules 1964. You can get all important informations, and also always I try it means to bring some questions. Actually those type of questions are coming nowadays. So आज इतना ही है. Thank you and namaskar to all of you.